celebrate Independence Day with a lot of enthusiasm and zeal. Yes. There will be cultural programs in schools and colleges. Yes. Different schools take different topics for drama performance, such as depicting life stories of Indian freedom strugglers such as Bhagat Singh, Gandhiji, etc. Yes, that's right. The dramas are generally based on our Indian superheroes like the freedom struggle, our Prime Minister and our great politicians, etc. What do you think, friends? These are our superheroes? Yes. Let me think. Who else can be India's superhero? I cannot think of anyone else. Even I cannot think of anyone else. I am sure all of you agree to me, and then we'll able to think more such heroes. Being army officer, you all know many such heroes. Then tell us, soldier. We all always remember freedom strugglers who lost their lives for our country before independence. Have we ever thought about officers and soldiers who lost their lives after independence? Aren't they India's superheroes? You are right, soldier. I agree to you, soldier. Many soldiers sacrificed their life protecting our country on the border. Yes, you are right, soldier. After independence, many wars such as Indo-China War in 1962, Indo-Pakistan War in 1965, Kargil War in 1999, and also so many bomb blasts and attacks in our country took place. And this incident no one remember. Also their martyrs are forgotten. If we sit and we recollect, we will remember a huge number of soldiers who sacrificed their lives for our country after independence. Schools and colleges in India should depict the life stories and sacrifices of the superheroes in dramas on the Independence Day. Our younger generation hardly even know the name of these superheroes. We must make our younger generation know about some of them, how they lost their lives fighting for our country. Yes, definitely we must. But before that, let us dedicate a song and a performance in the memory of these martyrs. Vande Mataram, my grade 5. यहाँ पे बैठे वाले सभी पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप YouTube आप ये जो इवेंट होने जा रहा है हमारा उसकी शूटिंग ना करें, क्योंकि हम जो ये इवेंट है वो हम YouTube पे अपलोड करने वाले हैं. सो प्लीज़ डोंट गो फॉर शूटिंग. यू कैन शूट वेर एवर यू आर बट डोंट कम फॉरवर्ड. आप सामने आकर शूटिंग मत कीजिए प्लीज़. आप जहाँ पे हो वहीं से. कोई नहीं
फौसे उड़ा दी, गिरे गिरे दारे मैंने उंगली जलाई है। राजा राजा बिंदे शामियाने के तले, आजा सारी बारें नीले आसमान के तले। Champagne on, come in it, come in it. सरोदे सर की मैं पहचान देना चाहूंगा। ये रिटायर्ड डीवाईएसपी सर, डीवाईएसपी बोल के इन्होंने इनका कार्यकाल निकाला है। एंटी करप्शन में भी सर थे और हमारे साथ हमने कुछ मूवमेंट्स किए हैं। हम सोशल वर्क में कुछ चीजें पर्दे के पीछे भी करते थे, अभी थोड़ा कम हो गया है। मुझे याद है कि हमने पूना में सेंट्रल बिल्डिंग में जब संस्थाओं को, स्कूल को परमिशन हमें मिल नहीं रही थी, परमिशन के लिए अप्लाई करने के बाद भी गवर्नमेंट दे नहीं रही थी, तब हम झाड़ पे चढ़े थे। वहां पे सर थे उसमें, उसके लिए क्लैप करिए। सेंट्रल बिल्डिंग में बड़े बड़े साहब लोगों को पसीना छुड़ाने वाले हमारे सरोदे सर थे। आज के इस मौके पे थोड़ी सी 5-7 मिनट की मैं बात करना चाहूंगा। आज हम आजादी का 75 साल पूरा किया है और हम 76th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। ये आजादी मिलने के लिए क्या क्या तकलीफें सही है, ये सब हमें पता है हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने। और आज हमने हमारे प्रोग्राम का जो थीम रखा है वो फॉरगेटन हीरोज पे रखा है। जो भी महान व्यक्तिमत्व थे, वो महात्मा गांधी हो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, या ऐसे बहुत सारे लोग जिनको हम जानते हैं, पर ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें हम उतना नहीं जानते हैं। उनका भी स्वतंत्रता के बाद भी जो छोटे छोटे युद्ध हुए हैं, उनमें उनका बहुत बड़ा बलिदान था, उनको हम याद कर रहे हैं। आज हम 75 साल पूरा कर रहे हैं। जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब आज से 25 साल के बाद, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरा मोबाइल दे दे मुझे। आज से 25 साल के बाद जब हमारा देश 100 साल पूरा कर रहा होगा, उस समय देखिए फ्रीडम ने हमें अंग्रेजों से आजाद किया। आजाद आज हम हमारे पीढ़ी को, यहां पे जो दादा दादी बैठे, नाना नानी बैठे, उनको पता है, उनके पापा मम्मी बोलते होंगे क्या तकलीफ थी। आज हम जितना आजादी से रह सक रहे, पढ़ सक रहे, जो ग्रोथ कर सक रहे, ये 75 साल की खुशी है। बट जब हमारा देश 100वीं सालगिरह मनाएगा आज से 25 साल के बाद, उस समय आपके बच्चे देश के लिए क्या करेंगे? हम आज से 25 साल के बाद क्या असेट देश को देने वाले हैं? ठीक है ना? हमारे दादा दादी पापा मम्मी ने जो मेहनत की, मैं बैठे हुए पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूं, उनके मेहनत के वजह से आज हम यहां बैठे हैं। बट हमारा दायित्व, देश क्या मांगता है हमसे? भारत माता 100 साल पूरा होने के बाद हमसे क्या मांगेगी, या 100 साल पूरा होने के बाद, आज से 25 साल के बाद हम भारत माता को हमारे बच्चों के जरिए क्या देंगे? हम क्या एसेट बनाने जा रहे हैं? यह जरूरी है। क्या हम अच्छे नागरिक बना सकेंगे? क्या हम अच्छी पीढ़ी बना सकेंगे? या हमारा देश दुनिया में नाम कैसे रोशन करेगा? यह बहुत जरूरी है। आपको पता है, आप में से कुछ लोग जॉब करते होंगे, आप में से कुछ लोग बिजनेस करते होंगे, अलग अलग तरीके सोशल वर्क करते होंगे। आज हम जिस मुकाम पे है, उस मुकाम पे रहने का वजह है
कि हमें वो मुकाम मिला, क्या आपके बच्चों को वो मुकाम मिलेगा? आप जिस तरह का बिजनेस कर रहे हो, जिस तरह का जॉब कर रहे हो, क्या आपके बच्चे को उस तरह का जॉब मिलेगा? उस तरह का अगर वो जॉब मिलेगा तो उसमें से वो देश की सेवा कर सकेगा। आप कोई किराना दुकान चलाते होगे, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, या कोई और कौन का काम करता होगा, वो क्या कर रहा है? अपना काम ईमानदारी से करके वो देश की सेवा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली सोल्जर्स ही सेवा कर रहे हैं, या पुलिस वाले ही सेवा कर रहे हैं, या ब्यूरोक्रेट्स ही सेवा कर रहे हैं। हम सभी लोग देश की सेवा कर रहे हैं, बट हम उस मुकाम पे है इसलिए देश की सेवा कर रहे हैं। क्या हमारे बच्चों को वो मुकाम मिलेगा? क्या आज का एजुकेशन सिस्टम इस तरह के स्टूडेंट्स बना पाएगा कि 25 साल के बाद आपके बच्चे को कोई खड़ा करेगा सामने? ऐसा लगता है आपको? सिंपल सी बात मैं पूछता हूं, एक मैं छोटा सा सवाल पूछता हूं, जो कि मैं पूछूंगा गूगल से। आपको शायद आवाज आए ना आए, मैं बता दूंगा। महात्मा गांधी का जन्म कहां पे हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था? Wikipedia. Mohandas Karamchand Gandhi was an Indian lawyer, anti-colonial nationalist and political ethicist who employed non-violent resistance to lead the successful campaign. इसका जवाब गूगल ने दे दिया। और एक सवाल पूछता हूं, आज मौसम कैसा है? There'll be thunderstorms with a high of 25 and a low of 22. Right now it's 24 and cloudy. क्यों ये सवाल आप जब छोटे थे किससे पूछते थे? किसी से पूछते थे ना? वो इंसान था। आज ये सवाल किससे पूछ रहे हैं हम? हमें कोई डिश बनाना है, डिश लोग मोबाइल से ही पूछते हैं ना। इसका मतलब इंसान का काम कम हो रहा है। आपका कंपटीशन स्कूल में किसके साथ था? साथ के बच्चे के साथ, अंकल आंटी के लड़के के साथ। आपके बच्चों का कंपटीशन किसके साथ रहेगा? बताइए, किसके साथ रहेगा? गूगल के साथ रहेगा? मशीन के साथ रहेगा? करेक्ट है। आपके बच्चे का कंपटीशन किसके साथ रहने वाला है? इनके साथ, गूगल के साथ रहेगा। क्या गूगल मशीन हड़ताल करेगी? पगार बढ़ा के मांगेगी? बोलेगी 8 बजे गए, मुझे घर पे जाना है, छुट्टी के दिन क्यों बुला रहे हो? बोलेगी? इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपका बच्चा सामने खड़ा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, या आपके बच्चे को कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा। पता है आपको? नहीं पता है। तो ये सब हमें जानना है। ये एग्जाम्स भी अभी ऐसे कंडक्ट हो रहे हैं क्योंकि बच्चे गूगल से पढ़ाई कर रहे हैं। देखो, हम क्वेश्चंस देते हैं, आंसर्स बच्चे गूगल से निकालते हैं, दिमाग पैदल कर दे रहे हैं। अब एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं, वो क्या जवाब देता है, देखते हैं। गांधी जी अगर आज जिंदा होते तो वो क्या करते? It's such a great way to express yourself. This might sound wild. You might be 30 seconds. इस क्वेश्चन का आंसर गूगल नहीं दे पाया। मैंने क्वेश्चन किया था, आज गांधी जी अगर जिंदा होते तो क्या करते? गूगल ने कुछ और ही क्वेश्चन का आंसर दिया जो आपको सुना ही नहीं दिया, पर उसने कुछ डांसिंग के बारे में बताया। समझ में आया? एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आने चाहिए जिसका आंसर मशीन नहीं दे सकती है। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी पूछा कि गांधी जी अगर जिंदा होते तो आज क्या करते, ये लास्ट ईयर यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। उसका आंसर जो इंडिया में सेकंड टॉप किया है उसने दिया था। उसने जैसा आंसर दिया था वैसा मैं नहीं बताऊंगा, आप चाहे तो इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, पर मैं उसका सार बताऊंगा। उसने लिखा था, गांधी जी अगर आज जिंदा होते तो वो
लोकशाही में जो हमें हक मिले हैं, वो हक अगर किसी का मारा जा रहा है तो मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा, मैं उसके खिलाफ आंदोलन करूंगा। इस तरह का आंसर सेकंड टॉप यूपीएससी के कैंडिडेट ने लिखा था। मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूं? क्योंकि अभी हमें बच्चों को ऐसा पढ़ाना पड़ेगा जो कि कंप्यूटर भी सोच नहीं सकता है। आपने इस स्कूल में क्यों एडमिशन लिया? मैं थोड़ा चल के बात करता हूं। आपने पिरामिड स्कूल, बचपन स्कूल क्यों आपने सेलेक्ट किया, या जो 2-4 साल से पढ़ रहे हैं उनको क्या डिफरेंट लगता है, थोड़ा मैं आपसे शेयर करूंगा। सर आप बताइए। पिरामिड स्कूल में बच्चों को क्या बोलते हैं उसको मराठीत म्हणजे पिरामिड स्कूलमध्ये मुलांना पाठांतरापेक्षा एखादी गोष्ट समजून घेणे आणि त्या अनुषंगानं शिकवणे, मुलांना नवीन क्रिया शिकतील, जे ॲक्टिव्हिटी बेस्ड जी लर्निंग होते, फक्त पाठांतरापेक्षा वेगळं काहीतरी आहे म्हणून मला इथं ॲडमिशन घ्यावं वाटलं। मैं एक ही लूंगा, सर ने आंसर एक्सपेक्टेड दे दिया है कि हम देखते हैं बच्चे जो है ना रोट लर्निंग करते हैं। पेपर में एग्जाम क्यों होता है? एग्जाम कागज भरने के लिए होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। आप समझ लो, जान लो, आपके बच्चे को कितने मार्क्स मिले हैं कोई नहीं देखेगा 25 साल के बाद। उसको कौन से स्किल्स आते हैं, उसको कौन से स्किल्स आते हैं वो देखे जाएंगे, उसके कंसेप्ट्स कितने क्लियर ही ये देखे जाएंगे। हमने देखा है बच्चे जो होते हैं वो एग्जाम में हमने बहुत सारे ऐसे स्कूल देखे हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं एग्जाम में उल्टी करने के लिए। बच्चे रटते हैं और पेपर में जाके उल्टी करके आते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। हमारा पढ़ाई का जो तरीका है, जो 2-4 साल से 5 साल से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं पेरेंट्स को कि आप आपके बच्चे को अगर कंपेयर करना हो तो आप नांदेड़ में सबसे बेस्ट स्कूल ले लीजिए। आपका बच्चा अगर 7th क्लास में होगा तो उसको उस स्कूल के उसी आईक्यू के 8th क्लास के बच्चे के साथ कंपेयर करिए। मैं लिख के देता हूं कि आपका बच्चा उससे बेहतर रहेगा। ये बात क्यों बता रहा हूं मैं, आप भी समझ लीजिए कि रोट लर्निंग से कुछ नहीं होने वाला है। हमें इस तरह की पढ़ाई देना है जो कि बच्चा सेल्फ लर्न करे, सेल्फ उसे करने आए। 21वीं सदी में जो स्किल्स उसको नीडेड है वो स्किल्स हमें देना है। उसके पास क्रिएटिविटी चाहिए, उसके पास एनालिसिस चाहिए। ये सभी स्किल देने के लिए हम चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा सिलेबस हम बच्चों को दे, अच्छे से अच्छे टीचर्स हम बच्चों को दे। थोड़ी बात मेरी लंबी हो गई है, पर बात का सार इतना ही कहूंगा कि हम चाह रहे हैं कि हमारा दायित्व है, स्कूल का दायित्व है कि जब हमारा देश 100वां गणतंत्र बनाए तब हम हमारे देश को एक अच्छी असेट दे। वो असेट हमारे बच्चे होंगे। क्या आपको ये मंजूर है? मंजूर है तो आप हाथ ऊपर करके जोर से हाँ बोलिए। जोर से बोलना है हाँ, और एक बार जोर से बोलना है हाँ। थैंक यू। Country get refreshed and reviewed. But how will the feeling of patriotism revive in the hearts of our younger generation is what I wonder. By making them know about our superheroes post-independence. Now tell me, how many of us know about the great rifleman Jaswant Singh Rawat who sacrificed his life in Indo-China War of 1962? Hardly any. Today I can
cannot resist myself from talking about the great rifleman. During the Indo-China War, when Indian troops returned back, Jaswant was only one who fight and killed 300 Chinese soldiers single-handedly for 3 days. Oh, such a brave man. No wonder he was the titled rifleman, as he killed 300 China soldiers alone with his rifle. The brave man was from Uttarakhand. He sacrificed his life in Tawang district, Arunachal Pradesh, where his memorial Jaswant Ghar is built up in his loving memory. This reminds me of another forgotten hero who lost his life during the Kargil War in 1999, Captain Vikram Batra. Yes. He awarded India's highest and most prestigious award for valor. His action during 1999 Kargil War in Kashmir between India and Pakistan. He was nicknamed the Sher Shah of Kashmir. And do you all know he fought the last battle of the country 36 long hours. 36 hours. 36 long hours. After 36 hours, he captured a most difficult peak in LA at a height of 7,000 feet above the sea level and hosted the Indian flag there. Not dead. The point of the hill is named as Captain Vikram Batra Top. Friends, what a brave man, what a great sacrifice. Because of such a brave soldier who fight for our country on border, we remain safe in our home. This reminds me of a song which we have certainly dedicated to Captain Vikram Batra. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो. By our small kids, UKG. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी. हमने कहा है, तुम भी कहो. हमने कहा है जो तुम भी कहो. आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा. आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा. हमने कहा है जो तुम भी कहो. चलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं. जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं. वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है. वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है. हमने कहा है जो तुम भी कहो. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी.
से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। A lot about the Indian Army officer, but we have most forgotten to mention at least one Indian Navy officer and Indian Air Force officer. Oh, this remind of squadron leader Ajay Ahuja. Indeed, apart from the wars, the terrorist attacks in our country post independence were also not less. And this reminds me of many of serial bomb attacks in our country. When we talk about Mumbai terrorist attack of 2008, I must mention about the brave Hemant Karkare. I am sure national youth will always remember, pay respect to and appreciate the forgotten hero and forgotten superheroes. Their life stories and struggles truly serve to be an inspiration and inspired patriotism in younger generation. On the occasion on Independence Day, it is time to remember their honor and their daredevil courage and bravery. So let's see the unity in diversity of India in the song of Desh Rangila by Grade 4 class. यहाँ हर कदम कदम पे धरती
चलो भारत का नया रूप आप सबके सामने सबको नया रूप दिखाने के लिए हमारे स्कूल के बच्चे आपके सामने आ रहे हैं पूरे जोश के साथ लेके गाना हर घर तिरंगा। रंग है क्या? ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या? रंग सत्य का। ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का। इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा, तिरंगा प्यारा। And all my dear friends, first of all, happy Independence Day to all. Today I am standing in front of you to deliver a speech on Independence Day. Today we all are enjoying our independence because of struggle and sacrifice of our freedom fighters. We should know our freedom fighters like Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and many others. Today we all are enjoying our freedom and having several rights because of struggle and sacrifice of our freedom fighters. Now it's time to strengthen our country. It is possible if we all came together. All Indians of different castes, different kinds, different states should live with unity and strive for development of our country. Patriotism is something which comes from the heart. It is the courage to protect our countries from enemies. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Last but least, our flag is not moving
because the wind moves it. It moves with the struggle and sacrifice of our freedom fighters. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. And bow our heads to them. भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम. like to thank here Gopinath Yashwantrao Sarode sir. He is the retired police officer. Please, parents, please wait for 2 minutes. Please stand on your place. I request you. Please wait for a moment. सभी पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट के लिए आप जगह पे रुक जाइए. नेशनल एंथम होगा, बाद में आप जा सकते हो. प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स. ऑल यू विल स्टैंड. स्टार्ट. जन गण